Hello, how are you? Today we learn class 12 macroeconomics and the chapter is national income and related aggregates. This chapter also we have done some previous, discussed this matter in the previous video also. This is your the difference between intermediate goods and final goods. Now I'll follow the same thing here. What is intermediate goods we have discussed, what is final goods we have discussed. Okay. Difference between these two we have discussed. Now we'll take up the features of intermediate goods. Features of IC. IC मतलब intermediate goods or intermediate consumption. आप बोल सकते हो. You can say IC or you can say intermediate consumption or you can say intermediate goods. What are the features of these intermediate goods? Okay, let's go one by one. Though I have discussed it, now I am trying to specify it. Okay, First feature is that intermediate goods are used by the producers. मतलब the goods which are used by the producer to produce other commodities is called intermediate goods. Simple आप बताओगे intermediate goods are used by the producers, not by the consumers. Clear? Number one. Number two. Intermediate goods within the production boundary. I have written short. Production boundary. मतलब ये है intermediate goods remain within the production boundary. This I have shown in the previous video. I have drawn the imaginary line. They have shown you the production boundary, and intermediate goods remain within the production boundary. Okay, it does not cross the production boundary. The moment a commodity, a good, cross the production boundary, it becomes final goods. And a commodity, as long as remain within the production boundary, it's called intermediate goods. So this is number two features. Within the production boundary means intermediate goods remain within the production boundary. What is final goods? Cross the प्रोडक्शन बाउंड्री. देखो मैंने दोनों चीज एक साथ कर रहा हूँ. मतलब फीचर्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड फीचर्स ऑफ फाइनल गुड्स. सेकंड पॉइंट आप डिस्कस. थर्ड पॉइंट वैल्यू नॉट काउंटेड. मतलब ये है द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट काउंटेड इन द नेशनल इनकम और द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट taken into account while we calculate national income to avoid the problem of double counting. Because if you take it, then it will create the problem of double counting. Whereas the features of final goods are written, the value of final goods are included in national income accounting. मतलब इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स का जो वैल्यू है वो हम लेते हैं टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. तो ये तीन फीचर ऑल्सो कैन से डिफरेंस बिटवीन और डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स. आई रिपीट इट अगेन. द फीचर्स यूज्ड इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर. फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर. नंबर वन. नंबर टू, intermediate goods remain within the production boundary. Final goods cross the production boundary. Number three, the value of intermediate goods are not counted against it. The value of final goods are counted in national income. This is one we have finished. A very small topic that I have taken. Now I'll take up another components of national income calculation, that is your investment. Okay, investment. This is what investment. Now what is investment? Actually देखो अगर बात करें investment, earlier I have written the formula कि y is equal to c plus s, or you can say y equal to c plus I, consumption plus investment. Now what is investment in technical word? Investment means
addition to the existing stock of capital. Addition to the existing stock of capital. Now what is capital? What is capital? Capital means produced means of production. It means that a means which has already been produced by us and is used to make other goods. And best example of capital goods is your machines. Machine is produced by us, again these machines are used to make other goods. That is your capital, fixed capital also you can say. And that's why आपका एक कारखाना है, उसमें 1 लाख रुपए का मशीन है. लेट्स मी गिव एन एग्जांपल टू मेक इट मोर क्लियर. आपका एक फैक्ट्री है, उसमें से आपका 1 लाख का मशीन है, ठीक है. अभी आपने सोचा है कि यू वांट टू एक्सपांड द फैक्ट्री, आप आपका फैक्ट्री को बड़ा करना चाहते हो, सो आपको नया मशीन खरीदना होगा. तो आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल तो 1 लाख रुपए का है और आपने 50,000 से और एक नया मशीन खरीदा. दिस इज योर इन्वेस्टमेंट. तो आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है? 1 लाख. हाउ मच यू एडेड? 50,000. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. और डेफिनेशन टू टेक इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन. आपने जो अभी एडिशन किया है, एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल. आपका एग्जिस्टिंग स्टॉक कैपिटल है 1 लाख रुपए का और आपने ऐड किया 50,000 का. दिस एडिशन टू दिस एग्जिस्टिंग 1 लाख कैपिटल इज योर इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक्स. आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू नाउ. ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट का आप टेकन इन्वेस्टमेंट डेफिनेशन आई हैव गिवन यू वेरी क्लियर. आई रिपीट, it is the addition to the existing stock of capital. Addition existing stock of capital. I have explained this addition and existing stock of capital. I have explained. Now investment देखो 2 टाइप का होता है. एक है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. मतलब इन दोनों को ऐड करके ही आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा. ओके, the sum of these two, fixed investment and inventory investment. Fixed ऐसे इन्वेस्टमेंट होता है. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट. ओके, नंबर 1. अब सवाल आता है ये इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या है? ओके, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या है? इसका दूसरा नाम है चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक का अलग तरीके से लिख सकते हो, चेंज इन STK स्टॉक, चेंज इन स्टॉक. अब ये चेंज इन स्टॉक क्या है? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ओके, आई शैल एक्सप्लेन दिस चेंज इन स्टॉक समवेयर हियर. आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट. चेंज इन स्टॉक, सी चेंज इन स्टॉक इक्वल टू closing stock minus opening stock. Okay, now change in stock STK. Change in stock equal to closing stock minus opening stock. Now what is closing stock and what is opening stock? Okay, let's first take the matter with an example. से मैंने एक या मिस्टर ए ने एक दुकान खोला, मेडिसिन शॉप खोला है, और इस मेडिसिन शॉप खोलने में इनका खर्चा हुआ पैसा से इन्होंने एक दुकान पे फर्नीचर खरीदा 2 लाख रुपया का. फाइन, तो उनका 2 लाख रुपया फर्नीचर में खरीदा. 2 लाख रुपया का उन्होंने मेडिसिन खरीदा, 4 लाख हो गया. और 1 लाख रुपया कैश इन हैंड हाथ में रखा है डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए, ये हो गया 5 लाख रुपया. ऑन 1 अप्रैल he has started his business with how much? 5 लाख. 2 लाख का फर्नीचर, 2 लाख का मेडिसिन और 1 लाख रुपया कैश इन हैंड लेकिन उन्होंने बिजनेस शुरू किया. डेली सेल बाय होते रहा, खरीद रहा है, बिक रहा है, खरीद रहा है, बिक रहा है, स्टॉक मेंटेन कर रहा है. करते करते 1 साल
खत्म हो गया उनका। ऑन 31st March he decided to take a stock कि whether he is in he is a loser or gainer, उनका लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो देखना चाहते हैं। तो 31st March में एट द एंड ऑफ द ईयर, अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डे आपका 31st March है, वो दिन उन्होंने स्टॉक लिया है और देखा है कि उनका फर्नीचर से एक साल में जो था वही है, 2 लाख रुपए का फर्नीचर उनके पास है, स्टॉक है। अब मेडिसिन का जो स्टॉक लिया देखा उसमें उनका 2.5 लाख का मेडिसिन है स्टॉक पे और 1.5 लाख रुपया उनका कैश है। सो अब कितना हो गया, 2 लाख का फर्नीचर है, 2.5 लाख का मेडिसिन है और 1.5 लाख का कैश है। तो 2.5 लाख और 1.5 लाख आपका हो गया कितना बोलो, 4 लाख प्लस 2 लाख 6 लाख। तो उनका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 6 लाख हो गया और उनका ओपनिंग स्टॉक कितना था, 5 लाख था। ये टेल मी नाउ ही इज अ लूजर गेनर, ही इज अ गेनर, ही इज अ गेनर, क्योंकि उन्होंने बिजनेस शुरू किया था 5 लाख से 1 अप्रैल को, बिजनेस चलते गया चलते गया चलते गया। ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 31st March उन्होंने अपना हिसाब लिया है, देखा उनका टोटल स्टॉक हो गया 6 लाख, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। 6 लाख का जो आया ना 31st March को, एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर 31st March, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। इन्होंने लिया 6 लाख रुपया और उनका ओपनिंग स्टॉक कितना था, 5 लाख। तो नेचुरली हियर क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक, ओके। क्लोजिंग स्टॉक is greater than opening stock. Naturally he is gainer. ये स्टेज ऑफ क्लास में आ गया। दूसरा दुकानदार भी 5 लाख से बिजनेस शुरू किया था। एट द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने देखा क्या, इनका 2 लाख का फर्नीचर रह गया और 2 लाख का मेडिसिन है। दूसरा दुकानदार, सेकंड शॉपकीपर, उन्होंने 5 लाख रुपए से दुकानदारी शुरू किया था, बिजनेस शुरू किया था। उनका पास भी 2 लाख का फर्नीचर है, 2 लाख का मेडिसिन है और कैश इन हैंड 50,000 है। तो उनका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 4 लाख हो गया। देखो बिजनेस शुरू किया था 5 लाख से 1 अप्रैल को और जब हिसाब किया है एट द एंड ऑफ द ईयर 31st March को, तो उनका आ रहा है 4 लाख। ही इज ए लूजर और गेनर, एब्सोल्युटली ही इज ए लूजर, क्योंकि इनका ओपनिंग स्टॉक जो है दैट्स ग्रेटर देन क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन ओपनिंग स्टॉक। ही इज अ लूजर, ये नेगेटिव में चला आया, चेंज स्टॉक नेगेटिव हो गया। तो क्वेश्चन इज हियर, चेंज इन स्टॉक इज नेगेटिव व्हेन opening stock is greater than closing stock or closing stock is less than opening stock. Now my point is here कि change in stock can be positive, can be negative or it can be zero also. Zero also मतलब क्या होगा, closing stock is equal to opening stock, तब 0 हो जाएगा। मतलब 5 लाख से बिजनेस शुरू किया था, एंड में जाके देखते उनके पास 5 लाख ही है, कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है। 2 लाख का फर्नीचर है, 2 लाख का मेडिसिन है और 1 लाख का कैश इन हैंड है। तो ही इज नाइदर लूजर नॉट गेनर। तो यू हैव गॉट 3 कंडीशंस, ओके। चेंज स्टॉक कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और चेंज स्टॉक may be equal to 0, whatever the case। आप कैलकुलेशन में एक करोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऑलवेज नेवर एवर ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कभी भी गलती से नहीं करना है। जो करना है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू चेंज इन स्टॉक। एंड चेंज, देखो मैंने सिंबल दिया, डेल लगाया मैंने, डेल मतलब चेंज, इस मतलब स्टॉक, डेल मतलब चेंज इन स्टॉक। इन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसका और भी वर्डिंग है, इफ इट इज पॉजिटिव
मतलब if change in stock is positive, it is called increase in stock. Okay, if change in stock is positive, it is called increase in stock. If change in stock is negative, change in stock is negative, that is called decrease in stock. तो आपको अलग अलग पैटर्न में दे सकता है. आपको सीधा बोलेगा चेंज स्टॉक, देन नीड नॉट कैलकुलेट, दिया हुआ है. अगर बोल रहे इंक्रीज स्टॉक मतलब प्लस पे है, यू विल ऐड. अगर वो डिक्रीज स्टॉक तो माइनस पे है, आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा. और अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक इतना दे दिया, ओपन स्टॉक इतना दे दिया, तो आपको चेंज स्टॉक निकालना होगा. यू टू कैलकुलेट चेंज स्टॉक. हाउ? बाय सब्ट्रैक्टिंग ओपन स्टॉक फ्रॉम closing stock. That is closing stock minus open stock. That is what this is your invented investment I have discussed. One part. Now fixed investment का अंदर 3 part है. There are 3 parts, 3 components. What are they? Net value of machines. Net value of machine. आपने जो machine खरीदा उसका net value आएगा. Depreciation minus करना होगा. That I will discuss. I shall discuss separately later on. Okay. Construction of building, second part. Third part is your depreciation. Now, this depreciation I shall discuss separately. Okay. The other name of depreciation is CFC, consumption of fixed capital. तो इनका दो नाम है. Either you can say consumption of fixed capital or you can say depreciation. This has to be discussed separately. That I shall do in the next video. Okay. But now जो मुद्दा आपके सामने है, ये क्या करना है? मैंने फिक्स इन्वेस्टमेंट 3 बार 1 2 3 मतलब ये प्लस करना आपको. 1 + 2 + 3. 1 पहला वाला क्या है? नेट वैल्यू ऑफ मशीन्स. मशीन जो खरीदा उसका नेट वैल्यू जाना, डिप्रीशिएशन माइनस करने बाद. थर्ड सेकंड पॉइंट आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ building. Maybe it's building or construct bridge or something like that. Third point is your depreciation. When you add these 3, you get fixed investment. और इस fixed investment के साथ आप ऐड करोगे inventory investment और change in stock. These 2 gives you investment. Clear? This is a bit bigger one. Now, if I think this matter is clear to you all, and if you have got doubt, you can put to comments. I shall explain the doubt again. No problem. But don't hesitate to ask me. Okay. Thank you.